try this question. If a uniform chain of weight twice of WL is hanged between two horizontal points through two small rings which can slide on a fixed wire. If each of these rings are acted upon by a horizontal force of magnitude Lw, then show that distance between these two rings is this. Basically हमें span of the catenary पूछा गया है. Very simple question in fact. Okay, देखो this is a catenary or this is a chain. This is being hanged between these 2 points A and B through these rings which can slide over a fixed wire. ठीक है. Okay, let us say this is X and this is Y. ठीक है. Okay, it is given that weight of this chain is 2WL. ठीक है. That means W, of course, this W is weight per unit length. ठीक है. Weight per unit length. ठीक है. So देखो इसका मतलब अगर मान लो let us say कि जो है L इसकी लेंथ है चैन की, WL will be total weight of it. This should be equals to 2W small l. So L is twice of small l. इसका मतलब this length is 2L. So that means this is L and this is L. ठीक है. And it is given that a horizontal force LW is being acted upon on each ring. ठीक है, LW. तो अगर हम लोग सिर्फ इस पार्ट पे फोकस किया है, इस पार्ट पे फोकस करें तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, इस टाइप से ये हमारे पास ये द लोवेस्ट पॉइंट है, दिस इज C एंड दिस इज लेट अस कॉल दिस इज B. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल टेंशन लग रहा होगा T नॉट. ठीक है, बट यहाँ पे ये LW लग रहा है. सो दे शुड बी बैलेंस. सो T नॉट शुड बी इक्वल्स टू LW, बट T नॉट इज WC. So this has to be equals to LW. From this we can say that C is L. Okay. Now what we need this is span because we are asked to find AB. What is AB? ठीक है. Okay. So now 8.B ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, arc length will be L because this arc length is measured from this point 0, C से. ठीक है. So this is L. So by intrinsic equation of catenary, that is S equals to C tan theta, right? That means, but S is L, so this is, and C is also L equals tan theta. That means tan theta is 1. So that makes theta is pi by 4. Okay, now हमें चाहिए span basically. Okay, so x coordinate of this point B will be given by C log tan theta plus sec theta, as xb is this, but theta is equals to pi by 4 at B. ठीक है. So xb is C times log tan pi by 4 is 1 and sec pi by 4 is root 2. Okay, and C is L anyway, so L log root 2 plus 1. This is xb. Okay, so the distance between rings, the distance AB is twice of xb, so this will be twice L log 1 plus root 2. आई होप समझ में आता है. वेरी इजी क्वेश्चन इन फैक्ट. ओके, तो बस इसमें देखो, इसमें यही सोचना था इसमें क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे. तो अगर इस आर्क को ले लिया जाए फ्रॉम दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज C, if we take the arc length between C and B, then there is this horizontal force LW and here this is T naught. So this T naught has to be balanced with LW. ठीक है, अगर इस पूरी आर्क लेंथ की बात की जाए. ठीक है, so from this we got C which is L. Then from the intrinsic equation we got the theta of this, means यहाँ पे जो tangent होगी, the angle which this tangent will make with the x-axis, that is pi by 4. So from that we can get the x coordinate, and twice of this x coordinate will be this span or distance between these two rings. Okay, so good question. Okay, let us try this question. If the ends of an uniform chain can slide over two smooth rods inclined at an equal angle psi in opposite direction to the vertical plane, then the seg in the middle is given by this. Okay, L by neta tan psi by 2. Then find the value of neta. Okay,
तो बेसिकली देखो क्या बोला गया है कि यहाँ से जो वर्टिकल लेट अस से दिस, ऐसे कोई दो रोड है, ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन मीन्स दिस प्लेन, ठीक है, इस वर्टिकल प्लेन में दो रोड है, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर विद एंगल साई, ठीक है, विद द वर्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और यहाँ से क्या है कि यहाँ से कोई चेन है जो इस पे हैंग की हुई है इस टाइप से, ठीक है, तो ऑफ कोर्स दे विल बी हॉरिजॉन्टल बिकॉज ये दोनों लेंथ सेम है, साई एंगल एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, दिस इज एक्स एक्सिस, ऑफ कोर्स दिस इज कैटेनरी, ठीक है। अच्छा देखो ये अपना सी पॉइंट है, लेट अस से दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, so this is 0 comma c in fact। अच्छा हमें पूछा क्या गया, let us call this o, let us call this c and this is, अच्छा this is c, तो let us call this d, ठीक है। so what we are asked, seg of catenary, तो seg of catenary क्या होगा, this is basically dc, dc is the seg of catenary by the definition we can say, ठीक है। अच्छा ओके, अच्छा फर्दर इट इज गिवन कि आई थिंक द लेंथ ऑफ चैन इज एल, ओके, लेंथ इज ऑफ चैन इज एल, ओके, सो दिस लेंथ बेसिकली आर्क ए बी जो है दैट इज गिवन एज एल, ओके। नाउ अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे जो रोड है स्मूथ रोड है, तो यहाँ पे इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा इस टाइप से कुछ, लेट अस कॉल इट एन, ठीक है। तो अब देखो अगर इस यहाँ पे एंड ए की बात की जाए तो यहाँ एंड ए पे अगर हम फोकस करें हम लोग, ठीक है, तो एंड ए पे यहाँ पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन को लगना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड टेंशन विल कोइंसाइड, बट ये जो नॉर्मल होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस रोड, ठीक है। दैट मीन्स इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट ए देन दिस एंगल विल बी व्हाट, सी दिस इज साई, the perpendicular to this is this and perpendicular to this is that, so the angle between both the perpendicular are same। बेसिकली अगर मान लो ऐसे कोई दो लाइन है, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी और इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, दिस एंगल विल बी सेम, दिस दिस विल बी थीटा, राइट। तो ऐसे ही देखो इसके परपेंडिकुलर जो है, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये है और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये है, सो इनके बीच का एंगल भी साई ही होगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ से पर इससे क्या मतलब होता है कि 8 पॉइंट ए अगर देखा जाए, 8 पॉइंट ए जो हमारे पास थीटा था वो को क्या हो गया, साई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर्क लेंथ की बात करें, अच्छा आर्क लेंथ क्या होगी, एंड जो एस होगी वो L/2 होगी, हाफ ऑफ द टोटल लेंथ, यहाँ से मेजर करते हैं। तो बाय इंट्रिंसिक इक्वेशन we can say that s equals to c tan theta or s is L/2, this is equals to c times tan psi, ठीक है। तो यहाँ से we can say that जो c होगा from this what we can say that c is nothing but L/2 tan psi, this is c। अच्छा अब देखो हमें पूछा seg, तो seg means this is dc, so this dc will be what, अच्छा ओके, सो देखो इसमें अगर देखो यहाँ पे वाई ए की बात की जाए, वाई ए क्या होगा, सी सेक साई, दिस इज द इक्वेशन वी डिराइव्ड फॉर वाई, ठीक है। तो मीन्स ये जो लेंथ है दिस इज वाई ए और हमें चाहिए सिर्फ डी सी, सो डी सी क्या होगा, डी सी इज नथिंग बट वाई ए, दिस इज वाई ए माइनस दिस लेंथ, दिस इज सी, वाई ए माइनस सी, दैट इज सी सेक साई माइनस सी विल बी आवर आंसर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि वाई ए जो है, सॉरी ये जो डी सी है, जो सेग है जो कि हमें चाहिए दैट इज नथिंग बट सी टाइम्स सेक साई माइनस 1, एंड सी की वैल्यू तो एल डिवाइड बाई 2 टेन साई है, एंड दिस इज सेक साई माइनस 1, ठीक। तो हमें क्या फॉर्मेट में दिया हुआ है वो अभी देखना पड़ेगा, टेन साई बाई 2, ओके, हाफ एंगल में दिया हुआ। तो जो सेग है डी सी दैट इज नथिंग बट एल टाइम्स 1 माइनस कोस साई डिवाइड बाई 2 साइन साई, इसको ऐसा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर दिया, 1 डिवाइड बाई कोस साई एंड दिस इज साइन डिवाइड बाई कोस साई, L times this is what we know that 1 minus cos theta by 2 is nothing but sin square theta by 2,
है ना, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, इसका यूज करेंगे यहाँ पे। सो दिस इज ट्वाइस साइन स्क्वायर साई बाई 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 साइन साई बाई 2 कोस साई बाई 2, ठीक है। सो दिस एंड दिस विल कैंसिल ईच अदर, और एक साइन भी कैंसिल कर देगा। सो दिस इज बेसिकली एल बाई 2 साइन साई बाई 2 डिवाइड बाई कोस साई बाई 2, और दिस इज एल बाई 2 टेंजेंट साई बाई 2। okay, so this is the final seg in fact, and this is given as L divided by neta tan psi by 2. So neta is nothing but 2. That is our answer. I hope you समझ में आता है। Easy question, ठीक है। So let us try this question. Question 10. A uniform chain of length L is resting in straight line on a rough table. One end of it is fixed at height h above the table in vertical plane. If chain is on the point of slipping, the length of table in contact with the chain is given by okay, so the question is what will be the length of table जो कि चेन के कांटेक्ट में, ठीक है। so let us solve it. okay, so basically ऐसे let us say कि ये कोई टेबल है, ठीक है। तो इस पे ये कोई चेन है वो रखी हुई है, और उसका एक एंड है जो यहाँ वर्टिकली हाइट एज पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। दिस इज फिक्स, लेट अस कॉल दिस ए, हियर इट विल बी सी ऑफ कोर्स, एंड इस टाइप से हमारी ये कैटनरी बन जाएगी, ठीक है। दिस इज एन वर्टिकल प्लेन, ओके। तो अच्छा ये लेंथ मान लो यहाँ तक है ये, ठीक है। ये जो है हमारी जो चेन है ये यहाँ तक है। सो दिस टोटल लेंथ फ्रॉम लेट अस कॉल दिस डी। सो बेसिकली जो आर्क ए डी है उसकी लेंथ एल गिवन है, और हमें पूछा क्या गया है, हमें लेंथ ऑफ टेबल पूछी गई है, मीन्स डी सी क्या होगा ये हमें पूछा गया है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ओके। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन वर्क कर रहा होगा, इस टाइप से कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अगर फोर्स बैलेंस किया जाए इसमें, लेट अस से कि जो डीसी है, लेट डीसी इज इक्वल्स टू सम के, ओके, देन वेट ऑफ चेन ऑफ लेंथ डीसी इज, ये क्या होगा, W इंटू दिस लेंथ, दैट इज वी हैव एज्यूम्ड दैट के। तो ये इसका वेट होगा, वो इसके ग्रेविटी जो जहाँ पे मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ पे W के अप्लाई होगा, ठीक है। बट जो ये टेबल है जिस पर की ये चेन रखी हुई है इसमें वर्टिकल तो कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, इसका मतलब N हैज टू बी बैलेंसिंग फोर्सेस। सो दिस N हैज टू बी इक्वल्स टू W के, ठीक है। फर्दर जो फ्रिक्शन होगा, अच्छा ये ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपेज है, मीन्स बेसिकली लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, इसके बाद अगर और डिस्टर्ब किया तो ये इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा ये सब हम अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हमारे सिलेबस में, विल रीड दैट आल्सो, ठीक है। अच्छा सो देखो इसमें जो फ्रिक्शन है वो किससे बैलेंस होगा, यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे टेंशन टी नॉट अप्लाई हो रहा होगा। So this friction has to be equals to T naught, which is WC, and friction is of course mu n, because this is the limiting friction, means जो static friction होगा, friction की maximum value, that is mu n, ठीक है। But n is what? N is WK. So from this what we can say that mu WK is equals to WC. So basically देखा जाए तो this mu times K is equals to C, ये एक रिलेशन मिल गया हमें, ठीक है, ओके। अच्छा फर्दर हमें पूछा गया लेंथ, मीन्स बेसिकली ये के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, व्हाट इज दिस के, ठीक है। सो ओके अच्छा देखो इसमें अगर पॉइंट ए की बात की जाए, 8 पॉइंट ए, तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ एस होगी वो क्या होगी, दिस विल बी मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। दिस इज सी, 0, C जो है ये पॉइंट यहाँ से मेजर्ड होगी, तो टोटल लेंथ एल है,
टोटल लेंथ एल है और डी सी के है, सो एल माइनस के जो होगी वो ये लेंथ होगी सी ए। दिस इज बेसिकली आर्क सी है, वही तो ये होगा इसकी आर्क लेंथ जो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन में होती है, एस इक्वल्स टू सी टेन थीटा, दैट एस इज फ्रॉम दिस लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ से नहीं होगा वो, ठीक है, यहाँ से होगा। तो आई होप ये समझ में आता है। सो दिस इज मीन्स एस इज एल माइनस के। अच्छा, फर्दर जो वाई ऑर्डिनेट होगा ए का वो क्या होगा, वो यहाँ से मेजर होगी, दिस इज आवर ओरिजिन, तो ये जो टोटल लेंथ होगी दैट विल बी वाई है, ठीक है। सो दिस इज एच प्लस सी, but h plus c, what is c? C is this mu times k, okay, so let us call this equation 2। so हमारे पास जो आ गया, ये आ गए हमारे पास दो रिलेशनशिप आ गए। now we know that c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। तो अगर a पे ये देखा जाए तो c स्क्वायर, तो चलो c स्क्वायर है, अच्छा c की भी वैल्यू है, दैट इज म्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस ए स्क्वायर, दिस इज एल माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई ए स्क्वायर, दैट इज एच प्लस सी का स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे। व्हाट वी द टर्म्स विच आर गिवन आर एच, म्यू एंड एल। तो अच्छा सी को हटाओ यहाँ से, एच प्लस सी, सी इज म्यू के, ओके। सो ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन गेट के, ठीक है, सो विल गेट दैट। सो म्यू स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच प्लस म्यू के का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस के का स्क्वायर, और दिस इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुछ फायदा होगा अगर उस टाइप से इसको करेंगे। नो, सो लेट अस ओपन इट, एच स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस टू एच म्यू के माइनस एल स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल के, दिस इज म्यू स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, but this and this they will cancel each other, so we have basically uh, this k square plus k times this is minus 2h mu, this is gone, minus 2l, this is also gone, plus l square minus h square, this is 0, this is the quadratic equation we have now, right? K square plus k times 2h mu plus 12, but when we'll turn this side then this will be minus plus l square minus h square, yes, ठीक है। now we just have to solve this, so k is minus, अच्छा let us put this minus here, so minus b means plus 2h mu plus 2l minus b plus minus b square, that is 2h mu प्लस 2l का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a तो 1 है, ए सी, so that is l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 2a, that is simply 2, so 2 तो थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है, so k is अच्छा 2h म्यू प्लस l, अच्छा 2 को भी कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस रूट, अच्छा तो 2 तो गया, तो एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू एच एल माइनस एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट के इक्वल्स टू एच म्यू प्लस एल प्लस माइनस, इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस एल स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, सो दिस इज एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू एच एल प्लस एच स्क्वायर, सो दिस इज के, ठीक है। अब के है उसकी दो वैल्यू तो हो नहीं सकती यहाँ पे, नहीं हो भी सकती है अगर पॉसिबल हो तो। अब देखो ये क्या है, इफ वी टेक प्लस हियर देन दिस विल बी मोर देन एल, द वैल्यू ऑफ के विल बी मोर देन एल, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज टोटल ये लेंथ ही एल है, और हमें तो सिर्फ ये पार्ट ऑफ दिस पूछा गया जो कि टेबल जिस जिस चेन की वो लेंथ जो कि टेबल के कॉन्टेक्ट में, सो विल रिजेक्ट द प्लस, ठीक है, सो प्लस not possible, so k will be h mu plus l minus root
और एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 म्यू एच एल। सो दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेबल जो कि चेन के कॉन्टेक्ट में है। आई होप समझ में आता है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक सोल्व करवा ली इसमें बस, ठीक।